Unacademy. Let's crack it. Shivesh, please introduce yourself to the. Yes, ma'am. My name is Shivesh Jaiswal, and I have done my schooling from Guru Gobind Singh Sports College, Lucknow, and I completed my law from Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, in 2021. And recently, ma'am, I have done my LLM from the same university, and I'm still working in NTPC as a law officer in North Kanpura, Jharkhand, ma'am. You're currently working as in NTPC. Yes, ma'am. I Okay. joined a month ago, ma'am. So you did your graduation from Ram Manohar Lohia. Can you Yes, tell ma'am. me about Dr. Ram Manohar Lohia? Ma'am, Dr. Ramanujaya was a socialist leader and he played prominent role, one of the important roles during independence and after post-independence as well. His emphasis was on democracy and socialism, and he also did phenomenal work while writing pieces on salt law, taxation, etc. Ma'am. And And when did you pursue your LLM? In which year? ma'am, 2022 to 2023 batch, ma'am, this year itself, ma'am. This year. Yes, ma'am. Okay. What was the topic of your dissertation? Ma'am, the topic of the dissertation was a critical analysis of abortion law in India with a special reference to that of UP and US. Ma'am. Can you tell me about abortion law in India? What is the current scenario? Yes, ma'am. Ma'am, currently abortion law in India is regulated by the Medical Termination of Pregnancy Act and especially the prominent sections being Section 3 and Section 4, ma'am, which deals with the conditions as per which the pregnancy can be done. Ma'am, it lays down two important points. The one being if the embryo is from 20th to 24th week, ma'am, during that period, opinion of a registered medical practitioner is important. And if it exceeds 24 weeks, ma'am, then it requires the opinion of more than two registered medical practitioners, ma'am. And the conditions laid down in the same sections have to be complied with, ma'am. Okay. इसके में एनटीपी रूल्स में लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? Ma'am, recently in 2021, some amendments were brought, ma'am. Okay. And can you tell 2021 me, amendment. and can you compare the previous with the current scenario after the amendments? Yes, ma'am. Ma'am, previously the gestation period which was mentioned in section 3 was different, ma'am. It used to state that the pregnancy before after 24th week is not permissible to be aborted, and that too in very extreme rare situation wherein the life of the women is in danger, ma'am. Ma'am, that's expansion of section 3 in the form of grave physical injury and grave mental injury to women has been elaborated. For example, the failure of contraceptive devices to control the population, to control the pregnancy, has also been made ground within the mental injury, ma'am, grave mental injury. Last year, there was this landmark judgment passed by the Honorable Supreme Court relating to abortion laws. Do you Yes, know ma'am. anything about the judgment?
Ma'am, I'm unable to recall that judgment, ma'am. I plead ignorance, ma'am. I'm really sorry. It's okay. Should I help you? It was Miss X versus Home Secretary. Yes, ma'am, in some line. Um, Okay. in, No in issues. fear of Hmm. giving to, sorry, ma'am. I beg your pardon. It's okay. Can you tell me the difference between Council of Ministers and Cabinet Ministers? Ma'am, Council of Ministers are exist as a whole, ma'am. They sink and swim together. However, cabinet ministers is a term usually given in political scenario, and cabinet ministers are is an individual designation now. Okay. Yes, ma'am. कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये दोनों टर्म्स यूज किए गए हों अलग अलग या फिर साथ में यूज किए गए हों? I beg your pardon, ma'am, because of the network issue, I may have missed a few words of your statement, ma'am. Okay. I was asking, is the name a constitutional provision, any Yes, ma'am. constitutional article in which these terms are used, either together or separately? Uh, Ma'am, I'm really sorry to say I'm not aware of any article wherein both the phrases are being used simultaneously or together. However, ma'am, I know a provision wherein the Council of Ministers have been used, ma'am. Okay, can you name that provision? Ma'am, if I'm not wrong, ma'am, I think it is section 74, ma'am. It's, Okay. Um, what is the difference between common intention and similar intention? ma'am, common intention as described by the Honorable Supreme Court means intention common to all, wherein there is a prior meeting of mind, and in similar intention, the same intention may be inhibited by a lot of individuals, but they do not share those intentions with each other, ma'am. There is no concerted design. They are not acting in furtherance of that intention together, ma'am. Okay. My last question would be, आपने दस्ती समझा है? Yes, ma'am. उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए. मैम, हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर 549 में हम लोग दस्ती समन जिसको सब्स्टिट्यूटेड समन भी कहते हैं मैम, जब प्लेंटिफ स्वयं से जाके इस समन को डिफेंडेंट को सर्व करता है कोर्ट से अनुमति प्राप्त करके, तो ऐसी सिचुएशन को उसे दस्ती समन कहते हैं मैम. Okay. So, Ashok sir, please. ओके हाँ हाँ गुड इवनिंग आपकी सर. गुड इवनिंग. आपकी हॉबी क्या है? Sir, I playing cricket, sir. Before joining the law program, I was in Guru Gobind Singh Sports College, so I was pursuing cricket, sir. ओके ओके. आप ये बताइए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये कविता किसने लिखी? क्षमा चाहूंगा सर. कोई बात नहीं. आप ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या अंतर है? सर, स्वतंत्रता दिवस में सर अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट विद्यार्थी के तौर पर मैं एक प्रयास करना चाहूंगा. आपकी अनुमति चाहिए सर. यस यस. सर, स्वतंत्रता दिवस हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम उस दिन संप्रभु हुए. वी अचीव द सोवरेन स्टेटस ऑन दैट डे. सर, रिपब्लिक के दिन हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमने संविधान को अपनाया और हमारा राष्ट्र संविधान पे चलेगा, और साथ ही साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के जो हेड होंगे वो हमारे चुने गए होंगे रादर दैन अ नॉमिनल और डेजिग्नेटेड हेड्स. नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था. मेरा प्रश्न है झंडा फहराने में क्या अंतर है? दोनों दिन 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है, तो उन झंडा फहराने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? मैं क्षमा चाहूंगा सर. कोई बात नहीं. आप ये बताइए कि एक तहसीलदार, पटवारी और आरआई, आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये तीनों एक टीम बना करके और एक अतिक्रमण को हटाने के लिए जाते हैं. एक अतिक्रमण हटाने जाते हैं और वहां पर वो जो अतिक्रमी और उनके परिवार वाले उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं. इस प्रकार की जब वारदात होती है तो तहसीलदार किन किन धाराओं में वो एफआईआर दर्ज कराएगा? सर, सर्वप्रथम तो आईपीसी के उन सेक्शन 187 के आसपास के प्रावधान जो ये कहते हैं कि किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसके कार्य करने से रोकने में और व्यवधान डालने में जो प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे सर वो लगेंगे. सर, दूसरे सर अगर चोट अगर गंभीर है, ग्रीवियस हर्ट में फॉल होती है सर, तो वो भी अट्रैक्ट होगा सर. और अगर हर्ट में फॉल होती है तो सर 323 ही आएगा, रेड विथ 393 सर.
एंड सर इसके अलावा सर अन्य वो सारे प्रावधान जो ये कहते हैं कि अगर कोई सरकारी कार्य बाधित होता है गैर कानूनी रूप से, तो उन सभी प्रावधानों को अट्रैक्ट किया जाएगा। किन धाराओं में चालान पेश किया जाएगा और कौन मजिस्ट्रेट इसमें कॉग्निजेंस लेगा और कौन सुनवाई करेगा? सर there are some specific sections ranging from 180 to 119 in the Indian Penal Code. Because of the fear of committing mistake, I am unable to take the exact names, sir. And those sections would be attracted. उस पे चार्ज बनेगा सर। और 323 और 325 गंभीर चोट है, उस पे भी बन सकता है सर। और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस पे सर कॉग्निजेंस लेंगे सर। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी विद्यार्थी की टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस आधार पर नहीं देता है कि आपकी 4 साल की फीस बकाया है, तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक को क्या रेमेडी उपलब्ध है लॉ के अंदर? सर kindly grant me few seconds to think over it, sir. Yes, 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 yes. Take your own time. Yes, sir. शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय के लिए आप उसे क्या सलाह देंगे कि आप यहाँ जाइए, ये काम कीजिए? वो उसकी टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता नहीं है और साथ में डिमांड करता है कि 4 साल की फीस भी बकाया, वो दोगे तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। सर मैं बहुत ही पूरे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इसका सटीक उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। अगर मेरे भरोसे में, मेरी बिलीव में कुछ अगर ओपिनियन अगर आपको स्वीकृत हो तो इजाजत दीजिए। जैसे बोलिए, आप बताइए। आप सर सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले उनको ये कहूंगा, सबसे पहले एक ओके सर सर्वप्रथम मैं एक मेल लिखूंगा और लिखित में लिखूंगा उनसे निवेदन करने के लिए कि कृपया उनके उस बच्चे के शैक्षिक करियर के साथ ना खिलवाड़ हो। और इस बात में तो सर स्कूल या यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, उसके पास अधिकार है फीस मांगने का, जो उसको अधिकार है कि उस फीस की मांग कर सके। सर ऐसी अवस्था में अगर रोका जा रहा है और बालक असमर्थ है उस फीस का भुगतान करने में, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने इस बात को रखूंगा। इस एक पिटीशन इस संबंध में दायर कर सकेंगे 227 के अंदर, 226 के अंदर। अच्छा, आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय पीआईएल? So PIL stands for Public Interest Litigation, sir, and public interest litigation was propounded by the Honorable Supreme Court so that those people who are unable to bring the matter before the Honorable Court and which is of great public importance can be considered by the Honorable Court, sir. And any person, whether affected or unaffected by that matter, can bring that matter before the Honorable Supreme Court or the High Court. Who is considered the father of the PIL? Honorable Justice P.N. Bhagwati, sir, is considered as the founder of PIL. सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा कि PIL इज फॉर पब्लिक, नॉट फॉर पब्लिसिटी? तो बहुत ही लैंडमार्क केस है सर, मैं क्षमा चाहूंगा, इससे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। यस, नेक्स्ट बोर्ड मेंबर, यू प्लीज कंटिन्यू। यस शिवेश जी, आपका पसंदीदा लॉ सब्जेक्ट कौन सा है? गुड इवनिंग मैम। ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, परंतु मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो पसंद करता हूँ। क्या हम क्रिमिनल लॉ की बात कर सकते हैं फिर? जी मैम। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि 2013 अमेंडमेंट से आईपीसी में कौन कौन से ऑफेंसेस ऐड किए गए थे? मैम 2013 के अमेंडमेंट से देयर वर सम सेक्शंस अंडर सेक्शन 376 after 376 which were added in the form of section 376 A, B, C and D, ma'am. And section 354 capital A, B, C, D were also added, ma'am. And some other provisions were added which I am unable अच्छा, to recall. फिर ये बताइए कि फिर 2018 अमेंडमेंट से, 2018 अमेंडमेंट से क्या ऐड हुए थे? मैम 2018 के अमेंडमेंट से मैम DA एंड DB शायद ऐड हुए थे मैम। आप श्योर हैं इन आंसर्स को लेकर? मैम श्योर नहीं हूँ मैम, गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँ।
चलिए, आप ये बताइए इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? Ma'am, interpreter suit has been defined in the CPC as if a person who is not interested in a subject matter and who wants that the two parties who are contesting in that matter should obtain a title or should obtain a legal claim, a legal rightful claim in that regard. He can file a suit under Section 88 of the CPC, ma'am. ठीक है, आप ये बता सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल मैं पूछना चाहती हूँ कि ए ने ग्लास ऑफ मिल्क में पॉइजन मिक्स किया इस इंटेंशन से कि बी उसको कंज्यूम कर ले, जी मैम. बट इंस्टेड ऑफ बी सी ने उसे कंज्यूम किया और उसकी डेथ हो जाती है। Yes, ma'am. क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस किया है? Yes, ma'am. बताइए कौन सा ऑफेंस किया और कौन से सेक्शन में से पनिशेबल कर सकते हैं? Ma'am, he has committed the offense of murder, ma'am. Ma'am, he would be punished under Section 301 of the Indian Penal Code because of the principle of transferred malice, ma'am. क्या पनिशमेंट होगी इसकी? किस चीज के लिए पनिश किया जा रहा है? Ma'am, he would be punishable for murder under Section 300, ma'am. इज इट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड? Ma'am, murder. आर यू श्योर? Yes, ma'am, quite sure. कितनी पनिशमेंट होती है मर्डर की? Ma'am, death or life imprisonment, ma'am. कौन से सेक्शन में है पनिशमेंट? Ma'am, 302 of the IPC. मर्डर की डेफिनेशन में कितने एक्सेप्शंस है? Ma'am, there are 5 exceptions, ma'am. कितने एक्सप्लेनेशंस है? I beg your pardon, ma'am, I'm unable to recall. सेक्शन 299 में कितने एक्सप्लेनेशंस है? Ma'am, there are 3 explanations. 2 to 3. Please. थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या है बताएंगे? Ma'am, third explanation कहता है कि in miscarriage matters. Please grant me some time to recall. मिसकैरेज से रिलेटेड प्रोविजंस आईपीसी में कहाँ पर दिए गए हैं? Ma'am, 312 onwards, ma'am. I beg your pardon, ma'am. Kindly grant me time to recall. ओके, टेक योर टाइम। I have clearly read the explanation, ma'am. However, maybe because of nervousness, I am unable to recall. आप टाइम लेके एक्सप्लेन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ma'am, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, याद आया आपको तो बताइए। ma'am, I'm not sure, but on my true belief, I would be asking permission to speak, ma'am, if I can. ओके, प्लीज। Ma'am, it says that if any portion of a child has come outside during delivery, so if the murder of that child is committed, then it will be culpable. Sorry, the death of the child has been committed. It will be culpable homicide, ma'am. And if none of the portions have come outside, then it will not be culpable. चलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। आप ये बताइए कि हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस पावर सीआरपीसी में कहाँ पर दी गई है? मैम, जरूर एक प्रोविजन है, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल. आई प्लीड इग्नोरेंस. क्या उसका कॉन्सेप्ट आपको याद है? सेक्शन नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है उसमें? मैम, it superintendence by its very nature says that the High Court has the power of superintendence over all the subordinate court in the territory of that state, ma'am. And by superintendence, it means that the general control regarding the discipline, the way of working, and several provisions in the CRPC which states that as prescribed by the High Court. ये So, आप प्रिज्यूम कर रहे हैं या आप श्योर हैं कि इस सेक्शन में यही लिखा हुआ है? I have definitely read that provision, but I'm unable to completely recall. So I was giving a general idea as to what I can recall. चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। ए ने बी को किडनैप किया इंडिया से और नेपाल ले गया इस इंटेंशन से कि वो किसी मंदिर में उसको सेक्रीफाइस कर सके। Yes, ma'am. क्या यहाँ पे कोई ऑफेंस किया है ए ने? Yes, ma'am. कौन से सेक्शन में किया है, प्लीज बताइए। Ma'am, first of all, if B would be a minor, if B is a minor in the sense that if she's a girl below the age of 16 years,
and a boy below the age of 16 years and a girl below the age of 18 years. That would be termed as kidnapping under Section 361. And if that person is a major, then that would be abduction, ma'am. यहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम इसे नहीं बोल सकते कि किडनैपिंग विद इंटेंट टू मर्डर। आपको Yes, नहीं ma'am. लगता ऐसा होना चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन You're सा absolutely सेक्शन right. बोलता है ऐसा? Ma'am, I think it's Section 364 or चलिए ठीक है, 364 Capital A, ma'am. ओके। शिवेश जी, आपका इंटरव्यू हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? आप रिलैक्स हो जाइए, बस मत होइए अब। अशोक सर आपको फीडबैक आपका बताएंगे, स्टार्ट करेंगे। अशोक सर प्लीज। ओके ओके ओके। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा है। आपका भाषा पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छा कमांड है। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उसमें आपने PIL का आंसर बहुत ही अच्छा दिया था। आपके कंसेप्चुअल स्टडी बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन मेरे को कुछ आपके लीगल जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा कमजोर लगा। क्योंकि मैंने एक सिंपल प्रश्न आपसे पूछा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बहुत ही मतलब पॉपुलर कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, जो कि वह अपने राष्ट्र कवि भी रह चुके हैं। उन्होंने कई खंड काव्य लिखे हैं, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इस प्रकार के खंड काव्य लिखे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको दैट विल बी बेटर फॉर यू। दूसरा, हमने आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी थी और एक तो प्रश्न आप समझे नहीं हमारा प्रश्न। हमने झंडा फहराने का अंतर पूछा था, आप हमें स्वतंत्रता दिवस और उनके बारे में, रिपब्लिक और उनके बारे में अंतर समझाने लग गए। तो ये थोड़ा बहुत एक माइनस मार्किंग हो जाती है कि आप हमारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ जावें, जरूरी नहीं कि तुरंत ही उसका आंसर देना है। ये थोड़ा नोट कीजिए आप कि किसी भी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए कि इन्होंने प्रश्न क्या पूछा। यदि आप हमारे प्रश्न को समझ गए, भले आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन प्रश्न को समझना जरूरी है। दूसरा, हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी थी आपको तहसीलदार पटवारी की। उसके अंदर हम आपसे ये अपेक्षा करते थे कि आप एग्जैक्ट हमें IPC के सेक्शन बतावें। आपने उसका सार तो बता दिया कि लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, उनके साथ मारपीट करना, ग्रीवियस हर्ट करना, इसके लिए पर्टिकुलर 3 सेक्शन है, 353, 332, 333 IPC। और ये चालान पेश होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में और वो फिर उसे कमिट करेगा, क्योंकि 333 धारा है ना, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है तो वो दैट इज ट्रायबल बाय द सेशन कोर्ट। तो वो सेशन कोर्ट के अंदर इसको कमिट किया जाएगा। इसी तरह हमने आपसे एक और प्रॉब्लम पूछी थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कि सस्ता सुलभ न्याय के लिए आप क्या सलाह देंगे। तो उसमें भी आप थोड़ा सा विचलित हो गए हैं। तो उसमें आपको सीधी सलाह देनी थी, या तो उसे सिविल सूट की आप देते, या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की सलाह देते, या आप उसे परमानेंट लोक अदालत की सलाह देते जहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। और 4 साल की फीस बकाया है तो वैसे ही वो 3 साल से ज्यादा के लिए वसूल कर ही नहीं सकता। हमने 4 साल की फीस का कहा था, है ना। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपकी जरूरी है। बाकी आप एक जुडिशियल ऑफिसर के हमें गुण दिखाई देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। नेक्स्ट आप फीडबैक दीजिए मैडम। शिवेश, जैसा सर ने बोला, मुझे लगता है कि आपका कमांड बहुत अच्छा है दोनों ही लैंग्वेजेस में। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद को प्रॉपर्ली एक्सक्यूज भी कर रहे थे। बस अपने लीगल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए। अबॉर्शन पे आपका डिसर्टेशन है तो उस पे आप सब चीजें जितना आपने लिखा होगा अपने डिसर्टेशन में, आपका हाइपोथेसिस क्या था, कंक्लूजन क्या था, उन्हें जरूर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। केस का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है मिस एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी था शायद, और इसमें अनमैरिड वुमेन को भी राइट्स दिए गए थे। तो ये सब जो आपके डिसर्टेशन का टॉपिक है उसको आप अच्छे से ब्रश अप कर लीजिए, क्योंकि उससे वो पूछ सकते हैं। बहुत लोग का इंटरव्यू सिर्फ डिसर्टेशन के अराउंड ही रहता है, जो उनका मास्टर्स है या फिर जो उनका टॉपिक था डिसर्टेशन का, उनके अराउंड ही रहता है। तो आप एक बार वो पूछ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी लीगल कॉन्सेप्ट तो क्या अच्छे हैं, कुछ में कंफ्यूजन हुआ था ये आप भी रियलाइज कर रहे हैं। मैम ने भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप उनका भी जवाब अच्छे से नहीं दे पाए थे, बेसिक क्वेश्चंस हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। सलोनी मैम।
आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? शिवेश जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि शायद रैपिड फायर जब होता है आप थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। Yes, आपका ma'am. बहुत I अच्छा चल have रहा था this. इंटरव्यू। अच्छा, मेरे टाइम भी Yes. अच्छा ही था, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, बट थोड़ा सा जैसे ही मैंने क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करे आप थोड़ा सा नर्वस हो गए, ऐसा Yes, नहीं होना है। ma'am. सेक्शन 299, सेक्शन 300 बहुत बेसिक और बहुत बेसिक नहीं बोलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे लॉ में। ठीक Yes, है, ma'am. इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। आपको ये Yes, रिटर्न ma'am. फीडबैक और ये सब मिल जाएगा, ठीक Yes, है, ma'am. वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं बिल्कुल। और क्वेश्चंस जैसे सर ने कहा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, आप कोशिश करिए Yes. कि एक ही बार में आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुन लें, ताकि आपको आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाए। 2 बार रिपीट होंगे क्वेश्चंस, 3 बार होंगे, बट इम्प्रेशन थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप कोशिश करिए कि एक ही बार में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुन के उसका आंसर करें। बाकी 2013 और 2018 अमेंडमेंट आपने पूरा उल्टा कर दिया Yes, ma'am. उसको। 2013 में आपने सारे रेप ऑफेंसेस बता दिए, ठीक है, 2013 में जो स्टॉकिंग, वरिज्म, ये सारे ऑफेंसेस ऐड हुए थे, और 2018 में सारे रेप ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट में चेंजेस आए थे, ठीक है, Yes, इसको ma'am. एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 6 दिन है, तो आप बस इंडेक्स बेसिस थोड़ा सा देख लीजिए। आपका बाकी कमांड है, लैंग्वेज पे है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ड्रेसअप भी ठीक है, आप इसके ऊपर ब्लेजर जरूर कैरी कर लीजिएगा। बाकी ऑल द Yes, बेस्ट। ma'am. बिल्कुल, आप सर ने बिल्कुल सही कहा, जुडिशरी मटेरियल है आप, ठीक है, Thank you so much, ऑल ma'am. द वेरी बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा। Thank you, ma'am. Thank you, sir.